Ever wonder how much money you can afford when it comes to buying a house? And hey, ever wondered is house really worth it? Oh, Anup Karyona got a house too? Yashraj Mungle also got a house? Katie, even Vinay got a house. What? How to maintain the status quo? Do you want to buy the house too? I think you are thinking the same thing. No? Alright. Then let's get serious now. What should be my monthly income in order to afford a house? In this video, I'll give you real estate frameworks with examples so that you can come up with your own decisions, so that you can decide if you have to buy the house or not. Is the house worth it? The answer is yes and no. There are choices, there is life, there are priorities. I have my choices, I have my life, I have my priorities. You have your life, you have your choices, you have your priorities. My choices are my choices, my priorities are my priorities, my life is my life. Your life is your life, you have your own priorities and you have your own choices. So answer is it all depends on you. So just because उसने घर लिया, इसने घर लिया, इसने घर लिया, इसने घर लिया, मैंने घर लिया, doesn't mean that you have to buy the house too. You think about you, not me. I should be thinking about myself and not you. I know status plays an important role in social hierarchy, but I don't want you to sit and suffer. I don't want you to sit and think, how do I pay the mortgage? I'll give you a few life examples and my answers to it. Consider there is a friend, he is on H1B, he wants to travel every time and he doesn't want to settle. I would never ask him to buy a house. Number two, a friend on H1B whose family is in India and he is working here. I would never ask him to buy a house. Why he should buy a house, भाई? क्यों प्रॉपर्टी टैक्स भरे? हाँ, ये बात अलग है अगर वो बड़ा हाउस लेके रेंट करता है थोड़ी जगह to Airbnb or with his friends and make money out of it. Consider a friend who is on H1B and he wants to buy a house next to his office. I would never ask him to buy a house. The reason is, क्यों लेना है घर ऑफिस के बाजू में? That means you are committed to the office, no? आगे जाके you have to leave this job in order to get this रोकड़ा, right? So you have to leave this job at some point, right? अगर घर लेने से what will happen? You will be committed to this location. That means you will be committed to this office too. Number four, a friend on H1B, he wants to buy a house and he has 20% down payment. Definitely, I'll ask him to buy a house immediately, provided उसकी अगर प्रायोरिटी है तो ही. Number five, a friend on H1B, he wants to buy a house. ठीक है, उसके पास 5% डाउन पेमेंट है and there is only one salary at home. Never ever I would ask him to buy a house. क्यों करना लेना है भाई? पहले 20% सेव कर लो, उसके बाद घर ले लो. I have made a basic video on how to buy the house. What I would recommend is complete this video and then go and just check out that video. But Katie, तेरा बड़बड़ बस हुआ. Tell me those real estate frameworks. Tell me how can I calculate if I really afford a house using my salary. Number one is 20-28 rule. This 20-28 rule is the guideline from the real estate industry to determine how much you can afford to buy your home. What they say is simple. You cannot allocate more than 20% of your monthly household income to the mortgage payment. Now you'll ask me कि भाई what is gross monthly household income? हस्बैंड की सैलरी पर मंथ, वाइफ की सैलरी पर मंथ, दोनों ऐड करो, दैट इज योर ग्रॉस मंथली हाउस होल्ड इनकम. अभी आप बोलोगे कि भाई 28 क्या है? स्क्रीन पे चलता है. सो लेट्स कंसिडर योर मंथली इनकम इज $5,000. सो 2028 का 20 नंबर ये बोलता है कि मॉर्गेज पेमेंट शुड बी 20%. मतलब 5,000 का 20% इज $1,000. सो इन 2028 रूल योर मॉर्गेज पेमेंट शुड नॉट एक्सीड मोर देन $1,000 पर मंथ. ये देखता है कि 28 नंबर क्या बोलता है 2028 रूल का. ये रूल ये बोलता है कि टोटल हाउसिंग एक्सपेंसेस शुड बी 28%. मतलब 5,000 का 28% इज $1,400 एंड दिस इंक्लूड मॉर्गेज पेमेंट, टैक्सेस और बाकी के जो इंश्योरेंस और ये सब आता है वो. अकॉर्डिंग टू दिस 28 नंबर द टोटल शुड नॉट एक्सेड मोर देन $1,400 पर मंथ. So in short, if you are earning 5,000, your mortgage payment according to 2028 rule should not exceed more than 1,400 per month. नंबर 2 पे आते हैं 30-33 रूल. इसका मतलब यह है कि 30% of your monthly gross income should cover your house related expenses. अभी आप पूछोगे कि भाई 33 क्या है? So let's consider again your monthly income is $5,000.
तो 30 नंबर ये बोलता है कि मॉर्गेज पेमेंट शुड बी 30%. सो 30 नंबर ये बोलता है योर टोटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द मॉर्गेज, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस शुड नॉट एक्सीड $1,500 पर मंथ. सो 33 नंबर ये बोलता है कि योर टोटल डेट एक्सपेंसेस शुड बी 33%. मतलब 5,000 के 33% इज 1650. दिस इंक्लूड्स द टोटल डेट पेमेंट्स. ठीक है, टोटल मतलब कार लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, ये सब जो भी रहते हैं ना वो डेट पेमेंट्स इंक्लूडिंग मॉर्गेज, कार लोन्स विच शुड नॉट एक्सीड मोर देन $1,650 पर मंथ. क्या आया? ओ मनन उठ गया क्या? नहीं उठा, वो जस्ट एक हिला, इसलिए मुझे एकदम सडनली नोटिफिकेशन आया सुबह सुबह के एकदम कितने 6 बजे. सो इफ यू आर अर्निंग 5,000 देन योर मॉर्गेज पेमेंट अकॉर्डिंग टू 3033 रूल शुड नॉट एक्सीड $1,650 per month. Number 3 is three-part rule. Three-part rule is a guideline from the real estate industry which determines how much can you afford a house based on your annual income. If your annual income is 60,000, three-part rule suggests that you should consider house with the maximum value of 180,000. That means 3 times of house. अगर आपकी सैलरी 200,000 है, then you can afford 600,000 का घर. आपका अगर हाउस होल्ड इनकम इज अराउंड 300,000 है, दैट मीन्स यू कैन अफोर्ड 900,000 का घर. नंबर 4 इज इमरजेंसी रूल. रियल एस्टेट गाइडलाइन ये बोलता है कि यू शुड सेव 10% ऑफ योर प्रॉपर्टी वैल्यू इन योर बैंक फॉर हाउस रिलेटेड इमरजेंसी इश्यूज. मैं सच्ची में बोलूँ गाइज, आई रियली डोंट वाउच फॉर दिस. मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी मतलब कुछ इश्यूज आ सकते हैं घर में. वेल, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल दैट बिकॉज मेरे दोनों जो घर है दोनों एकदम नए के नए हैं. अभी तक तो इतने इश्यूज नहीं आए हैं. टच वुड, हाँ एक मिनट टच किया. हाँ, टच वुड आने नहीं चाहिए भाई, आने नहीं चाहिए. हाँ मतलब मैं ये बोलता हूँ कि भाई इमरजेंसी फंड तुम लोगों के पास रहना चाहिए, बट नॉट नेसेसरी फॉर हाउस. एंड आई विल कवर दिस इन माई फ्यूचर वीडियोज कि भाई तुम लोग इमरजेंसी फंड कैसे बना सकते हो. फाइनली गाइस, एक बोलो क्या, आपको डिसीजन लेना है. ये मैं नहीं ले सकता. आपको खुद बैठ के, आपको और आपके वाइफ को, या आप अगर शादीशुदा हो, यू हैव टू सिट टुगेदर एंड यू हैव टू राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर. आई हैव फ्यू क्वेश्चंस दैट आई थिंक इफ यू आंसर देम then probably you will come up with a solution on whether to buy a house or not. So number 1 question is कि risk, how risk averse you are. Number 2 question is what is your current debt situation, मतलब क्रेडिट कार्ड पेमेंट, पर्सनल लोन जो भी आपने लिया है. नंबर 3 ये थोड़ा बिटर है, लेकिन हाउ स्टेबल इज योर रिलेशनशिप. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मैं सीधे बात करता हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई डिवोर्स हो जाए और बाद में तुम लोगों को वो हिस्सा करना पड़े घर का. उसके बाद आता है व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म गोल्स. उसके बाद आता है कि हाउ स्टेबल इज योर इनकम. बहुत सारे ले ऑफ हो रहे हैं, तुम लोगों को पता है, मेरे से ज़्यादा तुम लोगों को पता है एक्चुअली कि तुम्हारा इनकम कितना स्टेबल है, तुम्हारी जॉब केस कितनी सिक्योर्ड है. नंबर 6 इज कहना है हैंडल अनएक्सपेक्टेड चेंजेस. मतलब एकदम सडनली आप रेंट पे रहते थे, सडनली आप घर ले चुके हो, बहुत सारा पैसा जाएगा. आर यू ओके विद इट? कैन यू हैंडल दैट? और 7th योर कमिटमेंट्स टू इंडिया. ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स इंडिया पे हो, आपको मंथली उधर भेजना पड़े, तो आपको क्या लगता है कि ये सब करके भी आप कर सकते हो? ये सब आप पेपर में लिखो, आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा. फाइनली गाइस, मैं इतना ही आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान दो. जस्ट बिकॉज ऑफ मॉर्गेज पेमेंट है, ये है वो है, क्योंकि ऑब्वियसली घर आने के बाद बहुत सारे खर्चे आते हैं. इसके बारे में भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा. बट इसके चलते खुद की लाइफ बर्बाद मत करो, ठीक है? खुद की लाइफ बर्बाद मत करो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू विल फॉलो द रियल एस्टेट फ्रेमवर्क्स विच आई हैव गिवन. आई होप यू विल बाय अ स्वीट हाउस फॉर यू एंड आई होप यू विल नॉट go into that bhekawe mein and buy a house. Thank you so much for watching this video. Bye.